ناول میرا محرم عشق، قسط نمبر 43، مصنفہ مہر نور۔ کیا وہ حفاظت کر پائے گا؟ یہ رات کے کسی پہر کا منظر تھا۔ دن تھا 12 اکتوبر اور جگہ تھی ہندوستان کا شہر ممبئی۔ اس کی گاڑی ایک ویران سڑک پر چل رہی تھی جب اچانک سامنے سے 3-4 مرد نمودار ہوئے۔ اس نے زور سے گاڑی کو بریک ماری۔ ان سب کے ہاتھ میں گنز تھیں اور سب نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھبراتی ہوئی باہر نکلی۔ جو کچھ ہے نکال، ایک مرد کی گھمبیر آواز پر اس نے اپنے ہاتھ اور بازو میں ڈالے سارے زیور اتار دیے۔ اس نے وہ سب کچھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ اس مرد کی نظریں اس کے گلے میں لٹکتی چین پر گئی۔ یہ بھی نکال۔ وہ لڑکی فوراً گھبراتی نفی میں سر ہلا گئی۔ نکالتی ہے یا نہیں؟ اس آدمی نے گن کی نال لڑکی کے ماتھے پر رکھی۔ پلیز یہ چھوڑ دو، یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے التجا کرنے لگی۔ وہ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ نکال جلدی، ورنہ تو اس دنیا میں آخری نشانی بن جائے گی۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ پلیز سب لے لو، چاہے تو گاڑی بھی لے لو، اسے مت لو۔ وہ اس لاکٹ کو مٹھی میں دبوچ گئی، مگر شاید وہ آج یہ لے کر ہی جانے والے تھے۔ تو ایسے نہیں مانے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا مروڑ چکا تھا۔ اس سڑک پر اس لڑکی کی چیخیں گونج گئیں۔ کوئی ہے؟ پلیز بچاؤ۔ وہ مدد کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس آدمی نے لڑکی کے منہ پر 3-4 تھپڑ دے مارے۔ اس سے پہلے وہ مزید ہاتھ اٹھاتا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی کسی نے پکڑ لیا اور اس آدمی کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ ممبئی باسی کی طرح تیکھے لہجے میں بولتا ان سب کی درگت بنانے لگا۔ وہ سب اپنی جان بچا کر بھاگے تھے۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو میڈم؟ وہ اس گھبرائی ہوئی لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو ہر وقت خونڈا بدماش لوگ پھرتا ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی بہت ہی نازک تھی، 24-25 سال کی، شولڈر تک آتے بھورے بال، بلیک منی اسکرٹ کے ساتھ وائٹ جینز پہن رکھی تھی، کالی آنکھیں اور گندمی رنگت تھی۔ وہ ابھی ڈری ہوئی تھی۔ آپ بولو تو آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑاؤں؟ وہ میری اسکوٹی کھڑی ہے۔ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک بائک کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم ایک کام کرو، اپنی گاڑی چلاؤ، میں تمہارے ساتھ ساتھ اپنی گاڑی لگاتا ہے۔ وہ کہتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی گاڑی ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ وہ بھی رک گیا۔ لڑکی اب پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ لڑکی گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ آدمی بھی اتر کر اس کی سائڈ آیا۔ تمہارا منزل آ گیا میڈم، چلو میں چلتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ وہ لڑکی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اسے آواز دے کر روک لیا۔ رکو، بات سنو۔ وہ رک گیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ وہ اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے ایک نظر اس آدمی کے حلیے پر ڈالی جہاں بلیک ہوڈی پہن رکھی تھی جس پر صرف 2 حرف نمایاں تھے، AS۔ عبدل نام ہے میڈم۔ تم کچھ بھی بول سکتا ہے، مطلب وہ جو بڑے لوگ بولتے ہیں نا، ویسا کچھ۔ لڑکی مسکرائی تھی۔ اور کام کیا کرتے ہو؟ اس بات پر اس کی گہری کالی آنکھیں میں اداسی تھی۔ میڈم کام کا نہ پوچھو۔ وہ اداس ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے کچھ نرمی سے سوال کیا۔ ارے کیا بتائے میڈم، ایک سیٹھ کے بنگلے پر گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اس کے بیٹے نے باپ کے لاکر سے پیسے نکال لیے تو اس کا الزام مجھ پر ڈال دیا اور نوکری سے نکال دیا۔ اب ان کے پاس نہ کوئی گھر بچا نہ نوکری، اب بس اپنی یہ دوست رہ گئی ہے۔ اس نے اسکوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کچھ حیران ہوئی۔ کیوں؟ تمہارا کوئی گھر نہیں، کوئی فیملی نہیں؟ اس سوال پر اس کے چہرے پر ملال آیا تھا۔ تھا نا ایک چھوٹا سا گھر، ماں بیمار تھی، اس کے علاج کے لیے گھر بیچ دیا۔ ماں کا علاج ہوا مگر وہ گزر گئی، گھر بھی نہ رہا اور ماں بھی نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر کرب ابھرا۔ تم میرے پاس نوکری کرو گے؟ اس نے بے یقینی سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ کیا میڈم، کیسا مذاق کرتی ہو غریب کے ساتھ؟ میں اور آپ اتنی بڑی میم صاحب، میں کیا نوکری کر سکتا ہے آپ کے لیے؟ لڑکی پرسکون ہو کر مسکرائی تھی۔ میرے پرسنل باڈی گارڈ بنو گے؟ اور وہ آدمی اب تک بے یقین تھا۔ ارے سچ کہہ رہی ہو؟ کوئی جھوٹ نہیں؟ اور یہ دیکھ رہے ہو اتنی بڑی عمارت، یہ میرا گھر ہے، یہاں بہت سارے سرونٹ کوارٹر ہیں، تم یہاں رہ سکتے ہو، بس ہر وقت میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مطلب میری حفاظت کرنی ہوگی۔ بولو کرو گے؟ وہ تو اب تک شوق میں تھا۔ ارے عبدل، تیری تو لاٹری لگ گئی، سوچ کیا رہے، ہاں بول دے۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑایا کہ وہ لڑکی ہنس پڑی۔ ہاں میڈم میں کرے گا، لیکن تم مجھے نوکری سے نکال تو نہیں دو گے؟ لڑکی نے ہاتھ بڑھایا۔ ڈن۔ وہ کچھ جھجکا تھا۔ سوری، نو ٹچ۔
डन। और वह लड़की कितने ही पैर हंसती गई। ओह, तुम बहुत क्यूट और फनी हो अब्दुल, चलो अंदर चलते हैं। वो अपनी बाइक पकड़े अंदर गाड़ी के पीछे ही बढ़ा। लड़की ने सबको हाथ के इशारे से रोक दिया, इसलिए किसी ने अब्दुल को अंदर आने से मना ना किया। वो गाड़ी पार्क करती उतरी। हर तरफ गार्ड्स खड़े थे। ये अब्दुल है, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड, समझ गए? सब ने मुअद्दब सा सर हिलाया। चलो तुम्हें सारी बिल्डिंग अंदर से दिखाती हूँ। वो बेहद हैरत से और बेयकीनी से उसके पीछे अंदर ही बढ़ा और वो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा रोशन महल था। हाँ, महल नहीं, वो प्लाजा था। माँ कसम मैडम, मैंने आज तक इतने बड़े महल में काम नहीं किया। वो बच्चों की तरह पुरजोश होता बोला कि वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबसे पहले फ्लोर में जिम था, दूसरे फ्लोर पर कुछ ऑफिस बने थे, तीसरे फ्लोर पर बहुत बड़ा किचन और डाइनिंग टेबल था, चौथे फ्लोर पर घर की तरह सिटिंग रूम और बेडरूम थे, और पाँचवें फ्लोर पर स्विमिंग पूल था। हर फ्लोर पर बहुत सारे कमरे थे और पूरे प्लाजा में 100 से ज़्यादा गार्ड्स थे। वाह मैडम, तुम इतने बड़े घर में रहता है। उस लड़की ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आया, तुम्हारे पास इतने सारे गार्ड्स हैं, फिर इतनी रात को अंधेरी सड़क पर अकेले क्यों जा रहा था, और मुझे गार्ड क्यों रखा? वो लड़की राहदारी में रुक गई। उसकी हील की टक टक भी रुक गई। वो इसकी तरफ पलटी। जी, जितने भी गार्ड्स हैं ना, मेरे भाई के चमचे हैं, इसलिए मैं रात को 1 घंटा गार्ड्स के बिना अकेली आज़ाद ज़िंदगी गुजारती हूँ, और मुझे अपना गार्ड चाहिए जो मेरे भाई का जासूस ना हो। वो जैसे समझ गया, फिर सर हिलाया। वो दोनों फिर से चलने लगे। अच्छा मैडम, वैसे कौन कौन रहता है इस घर में? हम 2 बहन भाई ही हैं, और बहुत सारी नौकरानी और मुलाजिम, और गार्ड्स तो तुम देख ही चुके हो। ओह अच्छा, मैं समझ गया। उसने आसपास देखा, हर तरफ हर कोने में कैमरे लगे हुए थे। वो एक कमरे के बाहर आकर रुकी। एक नज़र बाहर खड़े गार्ड पर डाली। वो शख्स अपनी काली आंखों से इस लड़की के चेहरे का एक एक तासुर नोट कर रहा था। वो गार्ड के पास आई। उसे कुछ खाने को दिया? उसने कड़े तेवरों से पूछा। गार्ड्स सर झुकाए नफ़ी में सर हिला गए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगले 24 घंटों तक तुम लोगों को खाना पीना बंद है। वो गुस्सा से इनके चेहरों पर गिर गई। सॉरी मैम, सर ने मना किया था। वो मुअद्दब सर झुकाए वजाहत करने लगे। व्हाट सर? जब मैं कह कर गई थी कि इसे खाना पानी दो तो क्यों नहीं दिया? क्या सिर्फ तुम लोगों के बॉस सर हैं? वो तो पागलों की तरह चीखी थी। वो दोनों पीछे हो गए। उस लड़की ने गुस्से से एक आदमी की जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलने लगी। पीछे खड़े शख्स ने आसपास स्कैन किया। मेरे साथ आओ अब्दुल। वो फ़ौरन उसके पीछे गया। वो कमरे में दाखिल हुए। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उस लड़की ने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन की। कमरा बहुत खूबसूरत था। जहाज़ी साइज बेड पर कोई नस्वानी वजूद लेटा हुआ था। वह कदम कदम चलती बेड तक आई। पीछे खड़े शख्स का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। इस लड़की ने मोहब्बत से इस वजूद के चेहरे से कंबल हटाया। वो कोई 30 साल औरत थी, और पीछे खड़े अब्दुल का वजूद ठंडा पड़ गया। आंखों की जूत बच गई। भाभी, उस लड़की ने उसको हिलाया, मगर वो नींद में उतर गई थी। तो वो लड़की सर झटक कर उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब्दुल उलझा सा उसके पीछे चलता गया। मैडम, बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? उसने रुककर सर हिलाया। वो औरत कौन था? वो कुछ झिझकता हुआ पूछ बैठा। मेरी भाभी है। अब तुम ये सोच रहे होगा कि इस हाल में क्यों है? मेरे भाई से इनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। वो किसी और को पसंद करती थी। भाई ने ज़बरदस्ती शादी कर ली और इनके साथ खुश नहीं थी, तलाक लेना चाहती थी। भाई को लगता है कि इतने अमीर और आलीशान लाइफस्टाइल को छोड़कर एक गरीब आदमी के पीछे क्यों भागती है। बस फिर क्या, इनका तो एक ईगो हर्ट हो गया। वो तब से इसी प्लाजा में कैद हैं। उन्होंने सालों से बाहर की दुनिया नहीं देखी। और अब्दुल अंदर तक घबरा उठा। इतना वहशी आदमी! मेरा भाई मुझे भी यहाँ कैद रखता है। जब वो बाहर हों तो मैं कुछ देर इस प्लाजा से बाहर की दुनिया घुमाती हूँ। यहाँ दौलत दौलत तो बहुत है, बस सुकून नहीं है। खैर, ये मेरा कमरा है, मैं अंदर हूँ। तुम चाहो तो साथ वाले कमरे में रुक जाओ, चाहो तो प्लाजा घूम लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा कार्ड दिखा देना। उसने वो कार्ड अब्दुल की तरफ बढ़ाया। अब्दुल ने पकड़ लिया। वो अंदर की जाने बढ़ गई और अब्दुल वहाँ घूमने लगा। वो सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर में आया। रात गहरी हो चुकी थी। हर फ्लोर की बत्तियाँ बुझ गई थीं। उसने एक सुनसान गोशे में खड़े होकर कैमरे की नज़र से बचकर अपनी हुडी की अंदरूनी पॉकेट से एक मोबाइल निकाला। फिर इसमें चंद क्लिक किए। वो बहुत पास थी, मतलब वो यहीं कहीं थी। मैं आ रहा हूँ स्नो। वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आया। लॉकेट के सिग्नल यहाँ से आ रहे थे। यहाँ बेसमेंट में एक कमरा था। वो सबकी नज़रों से छुपता छुपाता अंदर दाखिल हुआ। कोई गार्ड नहीं था। कुछ कमरे बंद पड़े थे। उसने आगे बढ़कर सारे कमरे देखे, फिर जेब से एक नाइफ निकाला। उसे एक एक करता हर दरवाजे के ताले में डालने लगा। सब कमरों में पुराना सामान पड़ा था। आखिरी कमरे को खोला तो वो सारा खाली था। बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। असलम शाह के दिल की धड़कन तेज़ हुई। वो अंदर बढ़ा। सामने कुर्सी खाली पड़ी थी और ज़मीन पर रस्सी गिरी हुई थी। वो आगे बढ़ा, फिर झुककर उस रस्सी को उठाकर छुआ। इस रस्सी पर उसका लम्स था।
कुछ आगे देखा तो ज़मीन पर स्कीन चादर पड़ी थी। वो इस चादर को उठाकर अपने हाथ में छूकर महसूस करने लगा। इतने में पीछे से आवाज़ आई, उभरी। असलाम ने एक झटके से पीछे देखा, दरवाज़ा हिल रहा था। ओ नो, मशल ये क्या किया? वो फ़ौरन बाहर भागा था। वो हर रोज़ मामूल की तरह उससे कुछ देर के लिए कुर्सी से आज़ाद कर चुके थे। आज उसने भागने का फ़ैसला कर लिया था। वो फ़ौरन उस वाशरूम के दरवाजे के पास जाकर छुप गई। उसने अपने जिस्म में कैसे इतनी हिम्मत इकट्ठी की वही जानती थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई दरवाज़ा खोल रहा है। वो दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई, अपनी सांस की आवाज़ भी रोक ली। वो शख्स अंधेरे में आगे बढ़ गया। मशल कुछ हैरान हुई कि आज गार्ड्स नहीं थे। वो इसे मसरूफ़ देखकर फ़ौरन कमरे से बाहर भाग गई, इस बात से बेखबर कि उसका मुहाफ़िज़ उसके सामने था। वो अंधाधुंध इस बिल्डिंग से पीछे जंगल नुमा जगह की तरफ भाग गई। असलाम उसके पीछे ही भागा था। सर्वेंट क्वार्टर के पीछे छोटा सा घना जंगल था। ये प्लाजा बहुत बड़ा था। वो बहुत एहतियात से बिना शोर पैदा किए भाग रही थी। 2 महीने बाद रात को देख रही थी, वरना इस कमरे में दिन क्या रात क्या कुछ होश नहीं रहती थी। वो वहीं छुप गई। सांस फूल गया था, पत्तों में सरसराहट हुई। मशल की सांस रुक गई। वो दूर से प्लाजा की बत्तियां जलती फिर गार्ड्स का शोर महसूस कर सकती थी। वो जान गए थे कि जोया कुरैशी भाग चुकी है। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर हिचकियों का गला घोंटा और फिर वहीं कच्ची ज़मीन पर बैठ गई। वो नहीं जानती कि वो कितनी देर वहाँ बैठी रही। फिर अचानक लोगों के भागने की आवाज़ें आने लगीं। फ्लैश लाइट और सब गार्ड्स बातें कर रहे थे। ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी। बहुत करीब से आने वाली आवाज़ पर मशल का सारा बदन पसीने से शराबोर हो गया। वो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो थोड़ा सा ऊपर हुई और इसके बहुत पास आ गए थे। वो दबे पाँव उठी और एक बार फिर पूरी कुव्वत से भागी थी। वो पीछे देखती भाग रही थी जब अचानक किसी से बहुत ज़ोर से जा टकराई। मशल के होंठों से चीख निकलती इससे पहले एक भारी मर्दाना हाथ आया और इसके मुंह पर रखा उसकी आवाज़ हलक में ही दबा गया। मशल के सारे जिस्म में खौफ से कपकपाहट उतर गई। शोर मत करना, मैं हाथ हटा रहा हूँ। वो बहुत नरमी से उसके कान में सरगोशी करता हाथ पीछे कर गया और इस आवाज़ को सुनती मशल थोड़ा साकत रह गई। हो खुदाया, वो आ गया था। उसका मुहाफ़िज़, उसका सुकून, उसका शौहर आ गया था। उसका एक हाथ बहुत मजबूती से मशल की कमर के गिर्द हिसार बांधे हुए था और वो इसके सीने से लगी हुई थी। मशल ने बहुत मुश्किल से अपने हाथों को हरकत दी और उसके सीने से ज़ोर से लिपट गई। अपने हाथों से बहुत ज़ोर से उसकी कमर के गिर्द हिसार बांध के लिया। हाँ, ये वही लम्स था और उसका लम्स महसूस कर सकती थी। अचानक कदमों की आवाज़ से वो इस कमर से पकड़ता दरख्त की ओट में हो गया। मशल की कमर दरख्त से जा लगी और वो इसके सामने खड़ा उसे अंधेरी रात में अपने हिसार में छुपा गया। अंधेरा बहुत था, वो इसका चेहरा ना देख पाई, मगर वो इसे महसूस कर सकती थी। वो आंसू जो मशल ने 2 माह तक आंखों से नीचे गिरने ना दिए, उसे अपने सामने देखकर वो आंसू एक एक करते बहने लगे। उसने अपने सुन हाथ उठाए और उसके सीने तक लाई। अपने हाथ से उसके दिल की धड़कन महसूस होते किसी ने मशल शाह में नई रूप हो थी। अचानक अंधेरी रात में रोशनी का झमाका सा हो गया। इस्लाम ने अजियत से आंखें मींच लीं। हाथ ऊपर। पीछे से उभरने वाली आवाज़ से मशल के चेहरे पर घबराहट और खौफ नमूदार हुआ। इस्लाम ने अपनी कमर में अरसी गन बाहर निकाली। हम एक दूसरे को नहीं जानते, याद रखना। वो इसके कान में सरगोशी करता उसे गले से जकड़ता अपना रुख मोड़कर उसकी कनपट्टी पर गन रख चुका था। मशल कुछ भी सोच समझ ना पाई। अब मंजर ये था कि रोशनी इन दोनों के चेहरों पर पड़ चुकी थी। इस्लाम की गन मशल की कनपट्टी पर थी तो गले के गिर्द दूसरा हाथ रखा था। ये रही लड़की, इस लड़की को हमारे वाले करो। इनमें से एक गार्ड ऊंची आवाज़ में हुक्म देता आगे बढ़ा। इस्लाम ने गन की नाल सामने की और ज़मीन पर गोली चलाई। गोली की आवाज़ पर मशल के कानों में धमाके हुए। उसने बहुत ज़ोर से आंखें मींच लीं। तू मेरा बाप है जो लड़की तुम्हारे हवाले करे? वो बहुत अलग आवाज़ में बोला। मशल हैरत से ये सब समझने की कोशिश करने लगी। वो गार्ड्स कुछ देर घबराए थे। देखो अब्दुल, ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। सर को पता चला तो वो हम सब की जान निकाल देंगे। वो कुछ रिक्वेस्ट करने लगे। अज़लाम ने बेजारियत से आंखें मींची। अब्दुल किसी के बाप से भी नहीं डरता, बस मुझे ज़्यादा बकने वाला मर्द पसंद नहीं। हटो। इस लड़की को अपन खुद मैडम के हवाले करेगा। वो गन की नाल उसके सामने कर गया। देखो अब्दुल, इन सब में छोटी मैडम को ना लाओ, लड़की हमारे वाले करो। इस्लाम का दिमाग की रगें तन गई। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी को हाथ लगा सको। वो मशल के कान में से रोशी करता अगली गोली सीधी उस आदमी के सीने में मार चुका था। मशल की चीख निकल गई और वह सब खौफजदा होते पीछे हो गए। कहा था ना, मुझे बक बक करने वाले मर्द पसंद नहीं। हटो सब पीछे, वरना तुम सबके सीने में भी गोली मार देगा। वो सब घबरा कर एक साइड हो गए। मशल की कमर इस्लाम के सीने से लगी थी। वो इन सबको गन दिखाता जंगल से बाहर निकलता गया। वो जानता था कि पीछे से हमला भी हो सकता है। पीछे देखो, कहीं ये ना हो वो पीछे से आ जाए। इस्लाम ने उसके कान में से कोशिश करते उसे अपने सीने से लगा लिया। वो फ़ौरन चेहरा मोड़े पीछे देखने लगी। इस्लाम सीधा प्लाजा में दाखिल हुआ। गार्ड्स भी उसके पीछे ही अंदर आए। वो सीधा ऊपर सी कमरे के बाहर आया। मैडम, मैडम, वो ऊंची आवाज़ में उसे पुकारने लगे।
अब मैं जैसा करूँ खामोशी से देखती जाना। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में हिदायत दे रहा था। यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, भागना नामुमकिन है, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम्हें मैं अपने तरीके से बाहर निकालूंगा। मशल के सीने में उसके अल्फाज ठंडक की तरह उतर रहे थे। फ़ौरन सारे फ्लोर की बत्तियाँ जल उठीं। नौकरानियाँ उसके ज़ोर से चीखने पर बाहर निकल आईं। वो लड़की भी बाहर निकल आई। उस लड़की को देखकर मशल सकत रह गई। नेहा, वो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई, तुम इसे जानती हो? इस्लाम ने उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में सवाल किया। मशल ने हाँ में सर हिलाया। वह नाइट ड्रेस में थी, बाल जूड़े में बांधती हुई आ रही थी। क्या हुआ अब्दुल? इतनी रात को आवाज़। उसके सारे अल्फाज हलक में ही दब गए। ज़ोया? वो बहुत बेयकीन थी और इस्लाम के एहसास से निकलती उसकी जानी बढ़ी। इस्लाम की नज़र जैसे ही उसके हुलिये पर गई, दिल में बहुत सारे खंजर पेवस्त हुए थे। वो नंगे पाँव थी, दुपट्टा सर पर जो लिया था वो बार बार फिसल कर गले में आ रहा था। महरून फ्रॉक मिट्टी में सिनी थी, वो इस पर खून भी लगा था। इस्लाम का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसने फ़ौरन वो शॉल जो गले में डाल रखी थी उसे खोलकर मशल के ऊपर ओढ़ी, मशल को अच्छे से इसमें छुपाया। इसकी बीवी इतने बुरे हाल में थी, उसे अंदाज़ा तक न था। वो इसका चेहरा देखने की हिम्मत न कर पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? वो बेयकीनी से मशल का चेहरा देख रही थी जिस पर मिट्टी लगी थी। मशल ने एक नज़र उसे देखा और एक नज़र अपने हुलिये को। मैं पिछले 2 माह से यहाँ कैद थी, आज भागने की कोशिश की मगर तुम्हारे गार्ड पकड़ लाए। वो इतना कहती चकरा कर गिरी। इससे पहले वो ज़मीन बोसती इस्लाम से पीछे से पकड़ चुका था। नेहा फ़ौरन उसकी जाने बढ़ी, उसका गाल थपथपाया। ज़ोया आंखें खोलो, इस कर झुकी, इसका गाल थपथपा रही थी। इस्लाम का कलेजा मुंह को आ रहा था। मैडम, मुझे क्या लगता इनको कमरे में लेकर जाना चाहिए, इनका हालत काफ़ी ख़राब है। अब्दुल की बात पर उसने सर हिलाया। वो फ़ौरन उसे दूसरे खाली कमरे की जानिब लेकर बढ़ा। इस्लाम ने उसे नीचे नरम काउच पर लेटाया। मैं इसके लिए कोई कपड़े लाती हूँ। वो बाहर निकल गई। नौकरानियाँ हैरत ज़दा खड़ी ये सब देखती रह गई। इस्लाम ने एक नज़र इन दोनों को देखा। अरे बीबी, शक्ल क्या देख रही है, जाओ इसके लिए अच्छा सा खाना तैयार करके लाओ। वो कुछ गुस्से से गिर जाके वह फ़ौरन सर हिलाती भाग गई। और तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, जाओ चेक करो वॉशरूम में ज़रूरत की तमाम चीज़ें हैं या नहीं। वह फ़ौरन सर हिलाती वॉशरूम की जानी भागी। इस्लाम ने उसका चेहरा गौर से देखा। आंखें सोजिश का शिकार थीं, सफ़ेद चेहरा सारा काला हो चुका था, जिस्म पर बहुत कमज़ोरी हो गई थी। इस्लाम की आंखों से आंसू गिरते मशल के चेहरा भिगोने लगे। इस्लाम ने झुककर उसकी पेशानी पर लब रखे। मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा जेके। वो गुस्से से अपने दिमाग की फूलती रगों के साथ ये अहद कर चुका था। मेरी बीवी को जो जो तकलीफ़ मिली, इस एक एक तकलीफ़ का बदला लूँगा। वो नौकरानी बाहर निकली। सर, सब कुछ है। इस्लाम ने नफरत से घूरा। जाओ फिर सूप बना कर लाओ, शक्ल क्या देख रही है। वो गुस्से से गिर जाके वो फ़ौरन बाहर निकल गई। मशल, मेरी जान, आंखें खोलो। इस्लाम ने उसका गाल थपथपाने लगा, फिर झुककर उसके चेहरे पर लब रखे। मशल, उठो मेरी जान। इस्लाम ने जल्दी से मग में पानी लाकर मशल के चेहरे पर छिड़का। वो सब कुछ होश में आने लगी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और नेहा अंदर दाखिल हुई। इस्लाम ने उसे कमर से पकड़कर बिठाया। आओ ज़ोया, मैं तुम्हें शावर दिलवाती हूँ। ज़ोया उसके सहारे उठी और वॉशरूम की जाने बढ़ी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद शावर ले सके। इस्लाम वहीं बैठा अपने हाथ की मुट्ठियों को भींचकर तकलीफ़ काबू करने लगा। इतना बड़ा सलूक, कोई शख्स इतना वहशी कैसे हो सकता है? उसने ये भी नहीं सोचा कि वह एक औरत है, कम से कम एक अच्छे कमरे में तो रख सकता था। वो 2 महीनों से एक ही लिबास में थी। इस्लाम के बदन में शरारे फूट रहे थे, मगर अभी यह गुस्सा करने का वक्त नहीं था। इससे सबसे पहले इनका मकसद जानना था। मशल को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना था। वो वहीं काउच पर बैठा इंतज़ार करने लगा। फिर जेब में हाथ डालकर मशल का ब्रेसलेट बाहर निकाला और इसे हसरत से तकने लगा। 1 घंटे बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो दोनों बाहर निकली। मशल ने घुटनों को छूती सिंपल सी लाइट ब्लू फ्रॉक पहन रखी थी, बाल टावल में लिपटे थे। नेहा ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया। इस्लाम उसे देखकर तकलीफ़ काबू करता मुठ्ठियाँ भेज कर रह गया। वो इसके बालों से तौलिया निकालकर नरमी से उन्हें सिखाने लगी। मशल आंखें बंद करती जिस्म से उठने वाली दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। मैंने डॉक्टर को कॉल की है, वो भी तुम्हें चेक करने आती ही होंगी। वो नरमी से उसके पास बैठी उसे बताने लगी। मैं देख कर आती हूँ अब्दुल, इसका ध्यान रखना। इससे कहती बाहर निकल गई। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो दोनों की नज़रें मिली। इस्लाम की आंखें तकलीफ़ रोकने की वजह से लाल हो गई थीं। मशल ने बेडशीट मुट्ठी में दबोच कर तकलीफ़ को काबू किया। वो इसे पुकारने की हिम्मत ना कर पाई। अपना हुलिया चेंज किए वो सर पर कुछ लंबे बाल लगाए, रुमाल बालों पर बांधे, काली आंखों के साथ बैठा था। यकीनन 2 माह से शेव नहीं की थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी। बहुत मुश्किल से अपने दिल पर मनो बोझ लिए चलता इस्तकाया। वो भीगी आंखों से उसे देखती ही बेआवाज़ रोने लगी। इस्लाम की उसके पास बैठा, फिर अपना कपकपाता हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। वो उससे सिसक उठी। आगे बढ़कर उसके सीने से लिपटने की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। इस्लाम कुछ करीब हुआ और इसे अपने सीने में भेज लिया। वो इसके सीने से लगी तड़पती रोने लगी। मैंने आपको बहुत याद किया। वो बहुत मुश्किल से कुछ बोल पाई। इस्लाम ने उसके बालों पर लब रखे। वो इससे नज़रें मिलाने की हिम्मत ना कर पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, मगर मैं इस शख्स को तड़पा तड़पा कर मारूंगा।
वो इसे अपने सीने में भैंसे मजबूत लहजे में ऐद कर चुका था। मशल ने अपनी आहों से सिसकियों का गला घोंटा। आप इनसे हर बदला लेंगे, वो मुझे खाना भी नहीं देते थे। मैं इससे शिकवा करती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। मैं वादा करता हूँ उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसने अपनी बात कुछ मजबूत लहजे में दोहराई। असलाम उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे मजीद ज़ोर से अपने सीने में भींच कर अपने होने का एहसास दिलाया। कदमों की चाह पर असलाम ने उसे नरमी से छोड़ा और वापस काउच पर जाकर बैठ गया। यहाँ के साथ एक लेडी डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। वो रुख मोड़ कर बैठ गया। लेडी डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, फिर उसे इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ मेडिसिन लिख कर दी। ये ठीक तो है ना? वो दोनों डॉक्टर के साथ बाहर निकले। जी ठीक है, मगर सारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। शायद उन्होंने 2-3 माह से ठीक से ना तो खाना खाया है ना ही पानी पिया है, जिससे में पानी की काफ़ी कमी हो गई है। उनको नरम ग़िज़ा दें और कम से कम 15 दिन बेड रेस्ट करें। नेहा ने सर हिलाते डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वो वापस कमरे में चली गई। अज़ाम उस डॉक्टर के पीछे ही बाहर निकला। सुनो डॉक्टर, वो रुक गई। ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं है ना? मेरा मतलब किसी ने कोई जिस्मानी तकलीफ़ तो नहीं दिया? डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। जिस्म के हर पार्ट में वीकनेस हो गई है। वो ज़िंदा हैं, यही अनबिलीवेबल है। इस्लाम ने सर हिलाया तो वो चली गई। वो वापस कमरे में आया तो वो दोनों बैठी कोई बात कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, अगर मेरे भाई ने ये सब किया तो मैं तुम्हें खुद यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। वो इसके आंसू साफ करते उसे हौसला दे रही थी। यहाँ का बाप हमदान कुरैशी का बिजनेस पार्टनर था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को जानती थीं। मगर मशल को उम्मीद नहीं थी कि जेके नेहा का भाई होगा। नौकरानी खाना लेकर आई तो नेहा ने उसे खुद अपने हाथों से सूप पिलाया। सारा बाउल ख़त्म हो गया। वो पानी के भी 2 गिलास पी गई। क्या और मिलेगा? उसने नम आंखों से सवाल किया और अज़लाम शाह का कलेजा फट गया। नेहा ने नरम नज़रों से हाँ में सर हिलाया और फ़ौरन मुलाज़िमा को आवाज़ें देती वो सूप मंगवाया। मुलाज़िमा ने 2 मिनट बाद सूप का बाउल लाकर उसे पकड़ाया। वैसे सूप लाने लगी। असलाम वहीं कमरे में चक्कर काटता अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश में था। सूप पीने के बाद वो नरम बिस्तर पर लेट गई। गर्म पानी से शावर लेने के बाद डॉक्टर ने सुकून का इंजेक्शन भी लगा दिया और अब वो सूप पीने के बाद जिस्म में बहुत सुकून और तवानाई भी आ गई थी। वो चंद ही लम्हों में पुरसुकून नींद उतर गई। असलाम ने आगे बढ़कर उस पर कंबल डाला। नेहा कमरे से बाहर निकल गई। अब्दुल, इसकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसका ख्याल रखना। वो तो जैसे असलाम शाह के दिल की बात कर गई। वो हाँ में सर हिलाता दरवाजे तक आया और वो अपने कमरे में चली गई। असलाम वापस मशल के पास आया और उसके बालों में उंगलियां चलाता उसके माथे पर लब रखे उसे देखने लगा। असलाम ने नरमी से हाथ बालों से निकाल लिया। न जाने वो कितने अरसे बाद पुरसुकून नींद सोई थी। उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो सारी रात उसके पास कमरे में ही काउच पर बैठा रहा। वो सोती रही। उसे देखते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। अचानक किसी शोर से उसकी आंख खुली। असलाम ने होश-ओ-हवास बहाल किए। दिन के 11 बज गए थे। वो बेड से उठी, शायद वाशरूम जाना चाह रही थी, मगर पाँव पर बने ज़ख्म उसे तकलीफ दे रहे थे। असलाम फ़ौरन उठकर उसकी तरफ बढ़ा। वो जो बेड के पास खड़ी दीवार का सहारा लेने की कोशिश कर रही थी, जिससे साइड टेबल पर पड़ा वॉज नीचे गिर गया। असलाम ने उसे सोचने समझने का मौका दिए बिना ही अपनी बाहों में उठा लिया। यह अमल गैर मुतवक्किल था। उसने फ़ौरन असलाम की हुडी को सीने के मकाम से अपने हाथों में दबोचा। असलाम ने उसे वॉशरूम के अंदर लाकर उतार दिया। मैं दरवाज़े के बाहर खड़ा हूँ, मुझे आवाज़ दे लेना। उसके माथे पर लब रखता वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होती अपना मुंह हाथ धोने लगी। 2 माह बाद खुद को आईने में देख रही थी। किसी ने उसकी सारी खूबसूरती और शादाबी छीन ली थी। चेहरा जर्द हो चुका था, आंखों तले सोजिश हो गई थी। उसे अपने जिस्म के हर एक हिस्से में दर्द उठती महसूस हो रही थी। बेआवाज़ आंसू निकलते चेहरा भी भिगोने लगे। जब मर्द एक औरत को कमज़ोर समझता है तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। असलाम को दरवाजे में खड़ा देख उसने ये अल्फाज अदा किए। वो इसके करीब आया। वो जानता नहीं है कि औरत से ज़्यादा मजबूत और बहादुर कोई नहीं। असलाम ने नरमी से उससे पीछे से अपने साथ लगाया, उसके दोनों हाथ पकड़े, अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिकाई। मैं अपनी हर एक तकलीफ़ का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। अपनी उछल भरी आंखों में बदले की आग लिए वह खुद से हद कर रही थी। असलाम ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। बदला लेने के लिए इंसान की कमज़ोरी पर वार किया जाता है और उस जेके की कमज़ोरी हमारे हाथ में है। असलाम ने नरमी लहजे में ये अल्फाज अदा किया और मशल कुछ कन्फ्यूज़ सी उसे देखने लगी। इस प्लाजा में आने से पहले इस जेके की सारी हिस्ट्री पढ़ ली थी। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी नेहा है और नेहा इस वक्त हमारी साइड है। असलाम उसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे और मशल को लगा वो इतने हफ्तों की चलती धूप से ठंडी छाँव में आ गई है। नेहा की कमज़ोरी है नरम दिली, और वो किसी पर छोटा सा भी जुल्म होते देख नहीं सकती। उसकी ये रहम दिली ही हमारा हथियार बनेगी। ये सारा प्लाजा नेहा का है, मगर वो इस बात से बेखबर है। जेके उसका भाई नहीं, चचा का बेटा है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा किए बैठा है। हमें बस नेहा का ब्रेन वॉश करना है। वो खुद इस जेके से लड़ेगी, हम बैठकर तमाशा देखेंगे। असलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसके दोनों डिम्पल चमके। मशल ने अपने कपकपाते हाथ उठाए और इसके डिम्पल पर अपनी उंगलियां रखीं। असलाम की मुस्कुराहट गहरी थी। उसने मशल के दोनों हाथ पकड़े और अपने होठों से लगाए। मशल जैसे होश में आई थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप पाकिस्तान के सिपाही हैं और ये इंडिया है। अगर किसी को असलाम ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी और वो खामोश हो गई। दीवारों को भी कान होते हैं
اور تمہاری خاطر میں اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ مشعل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اکٹھی ہوئی۔ آپ میری خاطر یہاں تک آ گئے، اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ خود کو یہ سوال پوچھنے سے روک نہ پائی۔ ارے کیسی محبت، کہاں کی محبت؟ مجھے تو تمہارے وہ ڈائلاگس یہاں تک لے آئے ہیں کہ میرا شوہر آئے گا، وہ تم سب کی جان اپنے ہاتھوں سے لے گا، میرے پیچھے برا پاگل ہے، وہ میری خاطر دنیا کے دوسرے کونے میں بھی جا سکتا ہے۔ بس میں تو ایموشنل پھول بن گیا اور تمہاری یہ ایموشنل باتیں یہاں تک لے آئیں۔ وہ شریر لہجے میں کہتے اسے کمر سے پکڑے اس کی آنکھیں پر لب رکھ چکا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اسے تو صدمہ ہی لگ گیا۔ اسلام نے اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ میری کیا مذاق جو میں اپنی سنو کا مذاق اڑاؤں؟ اس کے گردن پر بھی لب رکھ چکا تھا۔ اس کا لمس مشعل کو اپنے جسم روح پر لگے زخموں کا مرہم لگ رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ باہر لایا۔ تم سے محبت کہیں زیادہ عشق ہے مجھے، تمہاری خاطر مجھے دنیا سے باہر دوسرے سیاروں پر بھی جانا پڑتا تو میں چلا جاتا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹائے سارے کمرے کے دراز چیک کرنے لگا۔ پھر ایک دراز میں فرسٹ ایڈ باکس نظر آیا، اسے نکال کر باہر لایا۔ پھر اس کے دونوں پاؤں کے زخم صاف کیے، پٹی کی۔ اسلام نے واپس وہ باکس رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنی پینٹ کی جیب سے ایک پین نکالا۔ یہ دیکھنے سے تو ایک پین ہے، مگر اس کے اندر چاقو ہے اور اس پر بے ہوشی کی دوا لگی ہے۔ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی گردن میں گھسا دینا۔ اسلام نے وہ پین اس کے ہاتھ پر رکھا، پھر پاکٹ سے کچھ اور نکالا۔ یہ بظاہر تو ایک لاکٹ ہے، مگر اس میں منی کیمرہ فٹ ہے، اس پر JK کے خلاف ثبوت ریکارڈ کروانے میں ہیلپ دے گا۔ وہ اس لاکٹ کو مشعل کے گلے میں پہنا چکا تھا۔ اس کے گلے میں اب بھی اسلام کے نام کا لاکٹ لٹک رہا تھا۔ اسلام آگے کو جھکا اور اس لاکٹ کو 2 انگلیوں سے پکڑا۔ مجھے یہاں تک پہنچانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ اس رنگ اور بریسلٹ کا بھی۔ مشعل کا ہاتھ پکڑ اس کی ویڈنگ رنگ اور بٹرفلائی بریسلٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تینوں چیزیں ابھی بھی اس کے پاس موجود تھیں۔ جاری ہے۔